गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Pranam Acharya ji. So I have a very best friend from childhood. We have been together for almost 25 or 38 years old. So last month when I came to Shivir, I told him that I came here and all. He just said no, he couldn't listen to it and all. That's fine. I tried to explain, but he was not in a position to understand all that, which was fine. I was just waiting for a right opportunity to help him better. Then just 2 days back, he passed away. He got a heart attack, and I can totally realize how he got a heart attack because of a lot of stress out of his career ambitions, stress from the family, stress from the relationships he was into. I think everything was leading to that. And at the age of 38, he passed away having 2 kids, and he was scared about their future even before the death. And when I went for cremation and all, I was carrying him and all that. That time I was kind of realizing that it was not death, but rather it was a murder, because everyone around him were giving influences such a way that he should only ambition for such things. He should only eat such kind of food. He can kill anything and eat. All kind of influences which were not at all healthy in terms of physical or mental. It was no way healthy, and it was leading to that. And I was trying my best to help him to come to such Upanishads and all that, but it was not enough. It was not that much influential to make him look at this direction faster. So I was even while cremating, I was thinking that how cautious we should be about the influences that we are emitting outward. Definitely we should be cautious of the influences that media and all others are giving to us. But I also feel it's a very important responsibility for us to be cautious of what influences we are generating out to the people around us. So I want to understand that a bit more, how to be very cautious of this. And also I don't want this incident to just pass away. I want this to this to make me more responsible, make me get into a direction where people whomever I am with, I'll be able to help them better and things like that. So any thoughts on this direction would be helpful. Thank you. मैं हिंदी में बोलूँगा. देखिए, इसी चीज़ से मैं घबराता हूँ. यही ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ. हम सब बहुत खतरे में हैं, और हम सब एक दूसरे को खतरे में डाले हुए हैं. आप अपने मित्र की बात कर रहे हैं, 38 की उम्र में देहांत हो गया. वहाँ पता चल गया कि मृत्यु हो गई है, अकाल मृत्यु हो गई है 38 की उम्र में ही. आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबके सर पर तलवार लटक रही है. और कोई और नहीं है आपका दुश्मन. हम खुद ही अपने दुश्मन हैं, और हमारे आसपास जो लोग जिन्हें हम अपना स्वजन बोलते हैं, अपना प्रिय बोलते हैं, हम ही उनके दुश्मन हैं. न हमें हमारा मित्र पता है, न हमें हमारा शत्रु पता है. कोई किसी की हत्या कर दे, कानून में सज़ा है. कोई किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, उसका प्रिय बनकर, स्वजन बनकर, पति या पत्नी बनकर, इसकी
किसी कानून में कोई सज़ा नहीं है। माँ बाप बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दें, कोई कानून सज़ा नहीं देता। हाँ, थप्पड़ मार दें तो पुलिस आ जाती है। किसी को हृदयाघात होता है, बिल्कुल भी इसको हत्या नहीं माना जाता, लेकिन हार्ट अटैक के अधिकांश मामलों में उस व्यक्ति के आसपास के लोग बिल्कुल जिम्मेदार होते हैं उसकी मौत के लिए। ज़्यादातर जो बड़ी बीमारियां हैं उनका संबंध ही मन की खराब हालत से है। शरीर की हालत से तो है ही, आप गलत खाना खा रहे हैं तो उससे तो निस्संदेह दुष्प्रभाव है, लेकिन मन का बहुत बड़ा उसमें किरदार है। चाहे वो हाइपरटेंशन हो, कार्डियक डिजीज़ हो, मधुमेह हो, और भी न जाने कितनी बीमारियां। बल्कि कहना ये चाहिए कि शायद ही कोई बीमारी हो जिसका मन से ताल्लुक ना हो। और अगर आपके मन को बीमार किया जा रहा है तो मुझे बताइए आपके मन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है कौन? आप बीमार इसलिए हुए, आपकी मौत इसलिए हुई क्योंकि आपका मन बीमार था। और मन बीमार होता है मन पर पड़ने वाले प्रभावों से। वो प्रभाव आपके दिमाग पर किसने डाले? कोई कोलंबिया में बैठा है, कोई रूस में बैठा है, कोई अर्जेंटीना में बैठा है, कोई मार्स पर बैठा है, उन लोगों ने आकर के डाले। आपके मन को बीमार, कमजोर कौन करता है दिन रात? बोलिए ना। हाँ, जो आपके आसपास के लोग हैं। और उनके मन को कौन बीमार करता है? आप करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। तुम मुझे बर्बाद करो, मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। तुम मुझे डायबिटीज दो, मैं तुम्हें हाइपरटेंशन दूंगा। ये रिश्ते हैं, इसे हम संबंध बोलते हैं। तुम मुझे जीने लायक मत छोड़ो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। बराबर का रिश्ता है, बिल्कुल जीवन साथी है, माने जीवन भर एक दूसरे को बर्बाद करेंगे। मुस्कुराने की बात नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर रहा हूं कि ये सब आप सुन के जाएं और ज़्यादा अपने यारों के झुरमुट में खो जाएं और जीवन साथी की बाहों में समा जाएं कि वाह वाह वाह, आज तो मज़ा ही आ गया, आज मूड बहुत अच्छा बना है। ये मैं हकीकत बता रहा हूं हत्याओं की। अभी अभी हमने एक लाश गिरने की बात सुनी है। आप किसी की छाती में खंजर उतार देते हैं, बड़ा भयावह दृश्य होता है, खून बह रहा है चारों ओर, पुलिस का सायरन होता है, वहां पर फीता लगा दिया जाता है, यहां वारदात हुई है। और आप किसी को इतना तनाव देते हैं, आप किसी से इतनी मांगे करते हैं, आप किसी के दिमाग पर इतने बुरे प्रभाव डालते हैं कि उसका दिल ही बैठ जाता है। पता नहीं चलता ना कि आपने कत्ल करा है, पता ही नहीं चलता। भारत वो देश है दुनिया का जहां रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत और स्थायी होते हैं। और भारत दुनिया की हार्ट अटैक कैपिटल है, डायबिटीज कैपिटल है, हाइपरटेंशन कैपिटल है। भारत वो जगह है जहां हम रिश्तों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाते हैं, टोटल कमिटमेंट। और भारत से ज्यादा कहीं हृदयाघात नहीं होते, मधुमेह नहीं होता, रक्तचाप नहीं होता। आपको समझ में नहीं आ रही ये बात? आप बहुत अच्छे पति या पत्नी हो सकते हैं, कैसे? नहीं, खाना तो मैं तुम्हें पूरा खिलाऊंगी। खाना खिलाने में कोई कोर कसर नहीं। डॉक्टर ने दवाइयां लिख दी और दवाइयां भी मैं खिलाऊंगी तुम्हें पूरी,
दिन में 4 बार दवाइयाँ, मैं पूरे यत्न से दवाइयों का डब्बा बनाऊंगी, तुम्हें खिलाऊंगी, लेकिन इतने ताने मार मार के खिलाऊंगी कि दवाई फायदा क्या करेगी? तुम में जहर और उतार दूंगी। मैं पति हूं, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। कैसे? कोई दूसरा तुम्हें छूने ना पाए, तुम्हारे पास पैसे पूरे होने चाहिए, लेकिन तुम्हारे मन, जीवन, तन पर ऐसे नारकीय प्रभाव डालूंगा कि अंदर ही अंदर तुम्हारा कत्ल होता रहेगा, और इसकी मुझे सजा मिल नहीं सकती, क्योंकि वो कत्ल दिखाई ही नहीं देता। हाँ, पता चल जाता है, जब लाश गिरती है तब पता चल जाता है, लेकिन दिक्कत ये है ना, कई मामलों में लाश गिरती नहीं, आदमी मर के भी अपने आप को घसीटता रहता है, लाश चलती रहती है, तो पता ही नहीं चलता कि कत्ल हो चुका है। बल्कि मिसालें दी जाती हैं, देखो बुढ़ा बुढ़ी दोनों 80 साल के हो गए, दोनों में कितनी मोहब्बत है। अब बड़ी विषम स्थिति पैदा हो जाती है। एक और तो मैं भली भांति जानता हूं कि हमें बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे निकट के लोगों का है। दूसरी ओर मैं ये भी जानता हूं कि जिनसे शरीर का नाता है, खून का नाता है, उन्हें यूं ही छोड़ भी नहीं सकते। कोई छोड़ रहा होता है तो मैं ही उसको कहता हूं छोड़ मत देना। जब अंधेरे में साथ थे, बेवकूफियों में साथ थे, तो अब अगर तुम्हें रोशनी मिल रही है तो रोशनी में भी साथ रखो, बांटो रोशनी, छोड़ मत देना। इन दोनों बातों को एक साथ लेकर के चलना है। पहली बात तो ये साफ साफ जानना है कि मेरा दुश्मन मेरे बिल्कुल निकट का है। वो सब बात के होंगे मेरे शत्रु, जिनके साथ मेरे मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, या जिनको मैं कहता हूं कि इनसे मेरी दुश्मनी है, वो सब दूर के दुश्मन है। असली दुश्मन बहुत नजदीक का है। पहली बात है ये जानना, स्वीकारना। ये बात दिल तोड़ देगी, बहुत बुरा लगेगा, पर ये बात माननी पड़ेगी। और फिर जिगर दिखाना है ये कहने का कि हाँ, मैं जान गया हूं कि मेरे नजदीक वाला ही मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं फिर भी करुणा रखूंगा, मैं इसको छोड़ नहीं दूंगा। ये मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं दुश्मनी नहीं दिखाऊंगा। मैं ऐसा कोई मुगालता, ऐसा कोई भ्रम नहीं रखूंगा कि मैं अपने आप को बोलूं कि एक मेरे जो नजदीक है ये मुझे बहुत प्यार करता है। नहीं करता प्यार, कभी नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता, वो प्यार जानता ही नहीं। वो मुझे क्या, किसी को नहीं कर सकता। उसे भगवान से प्यार नहीं, मुझसे क्या होगा। छोड़ दो ये बात कि प्यार है, इश्क, लव वगैरह, कुछ नहीं, बेकार की बात। इसलिए नहीं कि उसने तुमसे नहीं किया, मैं बोल रहा हूं वो कर ही नहीं सकता, उसमें काबिलियत ही नहीं है किसी से भी करने की। छोटी चीज नहीं होती है प्रेम। प्रेम करने के लिए बड़ी पात्रता चाहिए होती है। 99% लोग किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते, आपसे क्या करेंगे। और 99% में हम सब शामिल हैं भाई। ये अस वर्सेस दम की बात नहीं है। तो मानना होगा कि प्यार का प नहीं पता हमको, न पाया है। और फिर कहना होगा नहीं पाया, कोई बात नहीं, भीतर कटुता, बिटरनेस नहीं रखेंगे। अपने आप को अभागा मानकर रोएंगे नहीं। हमें नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम काबिल बनेंगे और देंगे। तुम नहीं दे पाए हमें प्रेम, हम बिल्कुल पहले तो मानेंगे। अपने आप को झूठे सपनों में नहीं रखेंगे, मानेंगे साफ साफ नहीं मिला, नहीं मिला। और फिर कहेंगे
हमें नहीं मिला, कोई बात नहीं, पाया नहीं, दे तो सकते हैं ना। और वैसा वाला नहीं देंगे जैसा तुमने दिया, नकली, ढोंग का, स्वांग, देह का, धन का, वो वाला नहीं देंगे। वास्तविक प्रेम देंगे। तुमसे हमें चोट मिली है, हम तब भी प्रेम पूर्ण रहेंगे। ये करुणा है। आ रही है बात समझ में? चुपचाप हो रही हत्याओं में शामिल मत होइए, न किसी को अपनी हत्या करने की अनुमति दीजिए। जीना है और जीवन बांटना है। जो हमारे साथ हुआ अच्छा होता कि नहीं होता, पर दूसरों के साथ वैसा नहीं करेंगे, न होने देंगे। हमारे साथ बुरा हो गया, इससे हम ये अनुज्ञा, लाइसेंस नहीं पा गए कि हम भी दूसरों के साथ बुरा करेंगे। क्यों? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं दूसरों की करता हूं। नहीं 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 नहीं, ये छूट नहीं मिली है। न ये छूट मिली है कि हमारे साथ गलत हुआ है और हम ये जान गए तो जीवन भर अपने आप को कहेंगे पीड़ित हैं, शोषित हैं, विक्टिम हैं। हाँ, हुआ है हमारे साथ गलत, लेकिन हम अपने ऊपर विक्टिम का, शोषित का, उत्पीड़ित का ठप्पा नहीं लगा लेंगे। बार बार ये कहते नहीं फिरेंगे कि अरे मेरे साथ तो बड़ा गलत हुआ, मेरे साथ तो बड़ा गलत हुआ। कुछ नहीं, हटाओ। बिल्कुल साफ साफ जानते हैं कि रिश्ते ठीक नहीं हुए, नहीं मिले, लेकिन उस बात से हमें हक नहीं मिल जाता विक्टिम कार्ड खेलने का। हम सही जिएंगे, जो हमें प्रेम नहीं दे पाया, कभी न कभी जा करके जीवन के अंतिम वर्षों में ही सही, उसको भी यह सिखा देंगे कि प्रेम होता क्या है। अगर आपको चोट लगी भी है तो उस चोट का सबसे सार्थक बदला यही है, तुम जो मुझे नहीं दे पाए, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वो दिया कैसे जाता है, और तुमको ही दूंगा। हाँ, ये बात पक्की है कि जब तुमको दूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि जो तुम्हें दे रहा हूं उसकी कीमत क्या है। तुम्हें उस चीज की कीमत पता होती तो तुमसे हमें ना मिल गई होती वो। वास्तविक प्रेम की कीमत तुम्हें कभी खुद नहीं पता थी, इसीलिए तुमने हमें दिया नहीं। हम जानते हैं कि हम अगर आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तुम्हें वास्तविक प्रेम देंगे भी तो तुम उसका कुछ मूल्य करोगे नहीं। तुम मत करो, वो तुम्हारी बात है। हम वो करेंगे जो हमें करना है, नहीं तो हम तुम्हारे ही जैसे हो जाएंगे ना। तुम्हारे जैसा नहीं होना। ये हठ, ये अकड़ एकदम छोड़ दीजिए। मैं, मेरा खानदान, मेरे लोग, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरा परिवार, आई कम फ्रॉम द सेठ फैमिली, वी आर द शुक्लाज। हटाओ। किसको ये स्वांग बता रहे हो? द शाइन ऑफ द कपूर्स। वहां अंदर क्या चल रहा है वही जानते हैं।
कोई अनहोनी घटने का इंतज़ार मत करिए, अनहोनी घट ही रही है। अभी जगिए, अभी चेतिए।